So hi guys, we'll be starting with property and possession now. The syllabus which we'll cover here in respect to jurisprudence is ownership versus possession, the definitions and the different perspectives in respect to possession at the same time. What is adverse possession and what are its classification? Right. So let's follow the drill once again. I'll add a page. Right. So first of all, ownership is a legal concept that grants a person a bundle of rights over a property. तो आपको ओनरशिप के मतलब से ही समझ आ गया होगा. What is ownership? Ownership versus possession. Right. So as I told you, ownership is a concept that grants a person bundle of rights. It's the highest form of right. You have to remember that it encompasses the right to use, enjoy, manage, transfer, and even destroy the property. An owner's right is in rem. Right in rem के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आप लोग ध्यान रखिए. Meaning it is enforceable against the whole world. Right. That is the elongated differentiation and the elongated definition in respect to ownership कि वो right in rem होता है. Right. Ownership is a legal title, not necessarily a physical control. For example, a landlord owns an apartment but does not have physical possession of it when it's leased to a tenant. ठीक है, याद रखना. Next, possession is the physical control or custody of a thing. ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ. It is a bundle of rights is a bundle of rights possession is the physical control or custody of a thing. ठीक है. It is a factual, not a legal relationship. We have to remember that, right? And the law protects the possessor's right to their possession even against an owner, except when the owner can prove a better title. ठीक है, ओनर पोजेशन दे सकता है एक पर्टिकुलर टेनेंट को. वही एक प्रॉपर्टी लॉ में यही कॉन्सेप्ट पे पूरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया है. ठीक है. सो डिफरेंशिएशन किस तरीके से, नेचर ऑफ राइट क्या है? इट इज अ लीगल राइट. राइट. ओरिजिन कहाँ से होता है? लॉ से क्रिएट होता है. ट्रांसफर, पोजेशन ट्रांसफर हो सकता है. राइट. प्रूफ क्या है? इट रिक्वायर्स अ टाइटल डीड और लीगल कंप्लायंस. राइट. इन रिस्पेक्ट टू ओनरशिप, मैं आपको फिर से बता देता हूँ. इट इज अ लीगल राइट. ठीक है. इट इज क्रिएटेड बाय लॉ. बाय लॉ. राइट. इट कैन बी ट्रांसफर्ड. ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड ऑफ कोर्स. राइट. इट रिक्वायर्स अ टाइटल डीड. Right. In the differentiations of possession, in possession there is only a factual control of property, not a legal control. Factual control होता है. Factual control is there. मैं इसके ना साथ में बना देता हूँ. राइट. सो फैक्चुअल कंट्रोल होता है. इसके अलावा इट इज अक्वायर्ड थ्रू फिजिकल propositions. Acquired through physical propositions. Possession can be lost. Lastly, it requires physical control. यहाँ पे टाइटल डीड होती है और यहाँ पे इट रिक्वायर्स फिजिकल कंट्रोल ऑफ द प्रॉपर्टी. देखिए, फिजिकल कंट्रोल हमें ओनरशिप में भी चाहिए होता है, लेकिन पोजेशन में टाइटल डीड की जरूरत नहीं होती है. दैट इज द डिफरेंशिएशन.
right? What is adverse possession now? Possession. Yes. So adverse possession is a unique legal concept. It is a very unique legal concept, especially in respect to property rights. It is where a person who is not the legal owner of a property can acquire ownership by possessing it openly, right? Continuously and hostilely for a statutory period. The core idea is that the law should not reward a negligent owner who fails to assert their rights for a prolonged period. ठीक है? बहुत ही यूनिक लीगल कॉन्सेप्ट है. इसमें क्या होता है दैट जो एक लीगल ओनर होता है प्रॉपर्टी का, ही और शी हु इज नॉट अ लीगल, जो एक लीगल ओनर नहीं होता है एक प्रॉपर्टी का, वो क्या कर सकता है कि वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे अपना हक जमा सकता है. ठीक है. एक तरीके से कब्जा करने की जो पूरी आ, धांधलेबाजी चलती है हमारे देश में, उसको इंग्लिश में ग्लोरीफाइड शब्दों में एडवर्स पोजेशन कहा जाता है. ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए. और इसमें कवि यही कहना चाहता है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर समय के लिए अपनी प्रॉपर्टी, जिसमें जो भी प्रॉपर्टी है, आप अगर उसके आप ओनर नहीं है, ठीक है, अगर आप उसके ओनर नहीं है फिर भी आप वहां रह रहे हैं एक पर्टिकुलर समय के लिए, तो आप उसके ओनर बन जाएंगे. दैट इज द सीन. ठीक है. टाइम बाउंड ओनरशिप इज क्रिएटेड. राइट. नेक्स्ट. There are three key elements in adverse possession. First is actual possession. Give me a second. I am receiving a call, guys. Give me a second. Really sorry, guys. Really sorry for the gustaki. We continue with the class. We were reading about three different types of possessions. Just a second. Right. So we were reading about actual possession. The possessor must physically occupy the property. कि असलियत में उस इंसान को वहां होना चाहिए. यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा है. Physically, the person should be present. Secondly, it should be hostile possession. The possession must be without the owner's consent and in opposition to their rights. Right? It should be without owner's consent. Thirdly, it should be continuous. The possession must be uninterrupted for the statutory period, which is 12 years for private property and 30 years for governmental property, especially in India. Right? Continuous होना चाहिए. Possession होना चाहिए. 12-year period for private property and 30-year period for public property. Right? There are a few cases in respect to it. One of it is very recent in nature, which is Ravinder Kaur Grewal versus Manjeet Kaur.
रविंदर कौर ग्रेवाल वर्सेस मंजीत कौर. In this case, it was held that a person claiming adverse position can initiate a suit to protect their possession and even seek a declaration of ownership. This judgment clarified the legal position and provided a remedy for adverse possessors. ठीक है. इसने एक ऐसा लीगल प्रेसिडेंट क्रिएट कर दिया है, लीगल प्रेसिडेंट क्रिएट कर दिया है which obliges with the law and gives a clear interpretation. मैंने जूरिस्प्रूडेंस के शब्दों में मैंने आपको ये केस समझा दिया है. राइट. क्लासिफिकेशन किस तरीके से होती है प्रॉपर्टी की, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ. प्रॉपर्टी कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस वेज. आई विल टेल यू अबाउट द वेज इन विच प्रॉपर्टीज आर क्लासिफाइड. राइट. प्रॉपर्टी फर्स्ट इज कॉर्पोरियल and incorporeal property. Corporeal property is tangible and has a physical existence. tangible होती है, tangible का मतलब हाथों में आ सकती है, and physical existence होता है. Right, like land, house or a car. Second is incorporeal property. It is intangible and has no physical existence, such as copyrights, patents and trademarks. Intangible होती है. ठीक है, that is it. Second is movable versus immovable property. Movable property is anything that can be moved from one place or another. Movable or immovable property. ठीक है. मूवेबल का मतलब आपको समझ आ जाएगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी जा सकती है. सेकेंड इज इमूवेबल विच इज लैंड, बिल्डिंग्स. इट इज देर इज दिस इज a crucial distinction in Indian law as the transfer of immovable property requires. ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो रिक्वायर करती है authorization through transfer of property act, which is very important, but it is a colonial law, TPA. TPA 1882. ठीक है, इसके तहत होती हैं चीजें. पोजेशन की क्लासिफिकेशन भी होती है. पोजेशन भी बहुत तरीकों से क्लासिफाइड है. पोजेशन भी बहुत तरीकों से क्लासिफाइड है. एक्चुअल वर्सेस कंस्ट्रक्टिव पोजेशन. ठीक है. एक्चुअल पोजेशन इज डायरेक्ट फिजिकल पोजेशन. बहुत ही सिंपल है. कंस्ट्रक्टिव का मतलब हुआ इट इज द लीगल राइट एंड एबिलिटी टू कंट्रोल एन ऑब्जेक्ट. राइट. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन विद द कीज टू अ लॉक्ड हाउस हैज कंस्ट्रक्टेड पोजेशन ओवर दैट हाउस. अगर मेरे पास एक घर की चाबी है तो मेरे पास उसका कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होगा. यहाँ पे लिख देता हूँ, की ऑफ अ हाउस एग्जाम्पल. अंडरस्टूड. देन mediate versus immediate possession. Mediate versus immediate possession. Right. Immediate possession is direct possession by the person. Immediate मतलब भाई डायरेक्टली होंगी चीजें यार, इसके सिंपल इंग्लिश है. मीडिएट में वो क्या होता है? इट इज द पोजेशन एक्सरसाइज थ्रू अनदर पर्सन सच एज लैंडलॉर्ड who possesses their property through a tenant. The tenant has immediate possession and the landlord has mediate possession. कि वो मीडिएटर बन जाता है. जहां मीडिएटर इंक्लूड हो गया वहां पे उसको बोलेंगे मीडिएट पोजेशन. ठीक है. सो ये सारी क्लासिफिकेशंस थी. आई होप आप सबको ये सब समझ आया हो. बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बेसिक भी है. राइट. सो नोट्स देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है. ओनरशिप इंप्लाइज इमीडिएट कंट्रोल, अल्टीमेट कंट्रोल सब्जेक्ट टू लीगल लिमिट्स. पोजेशन इज फैक्चुअल कंट्रोल. समझा दिया मैंने आप लोगों को. ये टाइप्स हैं. राइट.
हॉस्टाइल क्या होता है मैंने ये भी बता दिया है। इंडियन कोर्ट्स इन्फर presumptions फ्रॉम पोजेशन एंड एलोकेट बर्डन्स अकॉर्डिंगली। सिंपल। कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज कमेंट में लिख लीजिएगा, अभी मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आप लोगों को कुछ भी जरूरत हो, कुछ भी चीजें समझनी हो, किसी भी कॉन्सेप्ट पे समझनी हो, आप आराम से लिखिए, निश्चिंत होकर लिखिए। ठीक है। ये सब पढ़ना पढ़ा था हमने। कॉर्पस पर प्लस एनिमस रिफर्स टू व्हाट? दे आर एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन। एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन क्या क्या है? कॉर्पस एंड एनिमस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये बताया नहीं था। एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन, इट इज सो बेसिकली कॉर्पस पोजेशन इज द फिजिकल एलिमेंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन, राइट। कॉर्पस एंड एनिमस। कॉर्पस इज द फिजिकल एलिमेंट, सॉरी गाइस, एंड एनिमस इज द मेंटल एलिमेंट, राइट। सो दिस इज बेसिकली इट, कि फिजिकल एलिमेंट में क्या होता है? इट सिग्निफाइज द रिलेशनशिप ऑफ द पोजेसर, ऑफ द पोजेसर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो फिजिकली एक चीज होती है। ठीक है। एनिमस में क्या होता है? एनिमस, एनिमस पोसिडेंडी बोलते हैं वैसे, कॉर्पस पोसिडेंडी और एनिमस पोसिडेंडी इनका नाम होता है। इट इज द इंटेंशन टू पोजेस। ये इंटेंशन मैटर करती है, यही यहाँ पे कवि यही कहना चाह रहा है, सिंपल। एडवर्स पोजीशन क्या क्या रिक्वायर करता है? ओपन, कंटिन्यूअस एंड हॉस्टाइल पोजीशन फॉर पीरियड। इनकॉर्पोरियल ओनरशिप रिफर्स टू व्हाट? राइट्स लाइक आईपी, ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिया। वेस्टेड वर्सेस कंटिंजेंट इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही क्लासेस में समझा दिया है। ठीक है। वेस्ट कर रहा हूँ और कंटिजेंटली कर रहा हूँ एक चीज को, इसके बारे में आप लिखेंगे अब कमेंट में। ठीक है, कि क्या होता है। प्रिजम्पशन क्या है पोजेशन को लेके? पोजेसर प्रेज्यूम्ड ओनर अनलेस रिबटेड। समझे? प्रिजम्पशन यही रहती है, फॉर एग्जाम्पल मेरा मेरा मकान है, मैं उसको पोजेस भी करता हूँ। ठीक है। एडवर्स पोजीशन का आप एग्जांपल ले लीजिए, मैं 12 12 साल से यहाँ रह रहा हूँ, 13 साल से रह रहा हूँ, अब तो मैं हो गया, मेरा ये मकान हो गया। ठीक है। अगर मैं रेंट पे रह रहा था तो इंडियन लॉ के अंतर्गत, तो पोजेसर इज प्रेज्यूम्ड ओनरशिप अनलेस रिबर्टेड। अब कोई रिबर्ट भी करेगा तो वो नहीं कर सकता है। अगर 10 साल के लिए मैं रह रहा होता तब कोई रिबर्ट करता, तब हो जाती दिक्कत। ठीक है। सो दिस इज इट। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट लीगल ऑब्लिगेशन एंड सैंक्शन। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो, समझ आया हो, चीजें, नई चीजें आपको सीखने को मिली हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे हेड। ऑल्सो, don't forget to like, share, and subscribe.